So this course is a fishing craft technology, and in last class I think we studied about the different syllabus. So this first topic is this history and development of fishing craft. So how this fishing craft has been developed from the olden days to till now. So today we will study. So this fishing craft, as I already said in the earlier class, that the fishing craft, vessel, boats, all are synonyms. But generally, for smaller size, say for example, less than 20-meter length, generally it is a boat. But if it is more than 20 meters, then it is called a vessel or ship. But vessel, ship, craft, boat, all are synonyms. So this fishing vessel it is defined as a floating device and mainly used for fishing activity. That's why the name itself it is a fishing vessel. That means vessel which engaged in the fishing activity. So fishing activity क्या क्या है? So suppose we are going for catch a fish. So that is one activity. Then transportation. That means after the catch of fish, we have to transport from the sea to shore. Vessel also used, fishing vessel also used for research and training purpose. Say for example, if you have to go to the sea or ocean, you have to do the research. So you have to take the sample from the sea. Either you can take a water, you can take a sediment, you can take the fish and bring out our laboratories for doing the research. Training purpose, that means suppose this craft or vessel, we have to know how to operate, how to steer the vessel. So for training purpose, peoples are trained how to operate fishing vessel. So that one of the institute is there that is called as SIFNet. 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 Have you heard about SIFNet? Hello. No, sir. So SIFNet is a institute, that is Central Institute of Fisheries. SIFNet, Nautical Engineering, SIFNet, that is in Kochi. Okay, so they are giving this training how to operate the fishing vessel, and this institute basically is a under the Government of India institute, that is directly under the control of Ministry of Fisheries. So that training purpose, this vessel is also used. So basically it is a floating device used for fishing activity, then it is called as fishing vessel. How this development occurs? If we look our history, then there is a no record how the first craft were made and when they were used. There is a no record. But this boat in earlier days, people used as a crossing of river or navigating in inland water. देखते हैं ना हम अपने जो गांव में होते हैं, हमारा नदी नदी को क्रॉस करने के लिए अब आज भी यूज करते हैं। आदमी को बोट में एक किनारे से मतलब रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जस्ट क्रॉसिंग द रिवर, peoples were using that this boat. Then the problem would have been solved by the use of floating logs. So logs जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो ट्री का हमारा लॉग्स है, उस लॉग्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से टाई करते हैं, तो उसको यूज करते हैं एज ए फ्लोटिंग डिवाइस।
सो एक हमारा है अभी जस्ट आएगा दैट कैटामैरन generally we are using the logs and tying together, and that type of craft is called as catamaran. Olden days में क्या करते थे आदमी, जस्ट 1 log और 2 logs को टाई करके जस्ट उस पे बैठ करके जब रिवर में जाते थे तो उसको तो रो करना है ना, रो करना है में दैट मीन्स दे विल पुश करेगा, किसको, वाटर को पुश करेगा, तभी बोट हमारा आगे जाएगा. सो फॉर दैट दे वेर यूजिंग दैट हैंड, हाथ से रोइंग करते थे, और ट्री का जो ब्रांच है वो भी यूज करते थे एज ए पैडल रोइंग के लिए. जो हम एक गेम ही है ना हमारा ओलंपिक गेम में देखते होंगे, बहुत सारे आदमी स्पेशली इसमें होते हैं, मीन्स हमारा जो केरला है, केरला में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में देखेंगे डग आउट कैनो, एक बोट है, बोट पे कम से कम 10 आदमी 15 आदमी रहते हैं कंटिन्यूसली, और दोनों हाथ से कंटिन्यूसली उसको मीन्स रो को चलाते रहते हैं, हैंड से यूज करते रहते हैं. सो ये हमारा जस्ट फ्लोटिंग डिवाइस को कैसे हम रो करते हैं, जस्ट दैट वाज द डेवलपमेंट. देन कैटामैरन अभी हम बता रहे थे, दिस कैटामैरन जनरली कंसिस्ट ऑफ ए ट्री ट्रंक्स और logs. You can see here 1 log, 2 log, 3 log. Can you see in this picture? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 logs is there, wood log. इस 5 logs को एक दूसरे से क्या किया है, टाई किया है और पानी में उसको छोड़ दिया. सो क्या होगा, वो फ्लोट होगा. बट इस पे जब आदमी बैठेगा तो इसको मूव होना है वाटर में, तो मूव होने के लिए आइदर जो हैंड को यूज कर सकते हैं, हैंड से मींस रोइंग कर सकते हैं, और कुछ हम ट्री का ट्रंक ले सकते हैं, ठीक है, कोई बैम्बू पोल भी ले सकते हैं, एंड देन वी कैन पुश. तो जब हम पुश करेंगे तो दिस बोट विल मूव इनटू द वाटर. So this is the catamaran. Okay, so again it is having a different name in the our dish. सर हाँ बोलो. सर राफ्ट और कैटामैरन दोनों देखिए टाइप दिखता है, राफ्ट में भी तो बम्बू कहीं ऐसा ही रहता है. राफ्ट क्या है ना, जो भी चीज हमारा फ्लोट होगा, ठीक है, इसमें भी दो तरह के, वी कैन से दिस इज अ राफ्ट, ठीक है, बट कैटामैरन में क्या है, हमारा जो लॉग्स है, लॉग्स को एक दूसरे से टाई करते हैं, मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 7 लॉग्स. राफ्ट में क्या है, कोई भी फ्लोटिंग सबस्टांस को हम यूज कर सकते हैं, और वाटर में हम जस्ट, राफ्ट मींस फ्लोटिंग, जो फ्लोट करेगा वाटर में. ओके ओके सर. तो दिस इन साउथ, अपना जो साउदर्न पार्ट है, मींस साउदर्न स्टेट्स, that catamarans they are having a maximum, they are using 3 logs, sorry, minimum 3 logs and going up to the 7 logs, having a different name. This Chinnamaram is there, Periyamaram is there, Irukumaram is there, Kolamaram is there, different classification it will come, and then we will study this catamaran. Then catamaran के बाद में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट डेवलपमेंट है हमारा डग आउट कैनोस. कैनोस का डेवलपमेंट है. जो हमारा कैटामैरन था वो क्या था, उसमें हमारा होता था, वो थोड़ा स्लो नेचर का रहता था, ठीक है, और उसमें जो है क्योंकि मूवमेंट फास्ट नहीं हो पाते थे, सो उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें हमने डिजाइन किया. तो ये जो है हमारा सिंगल लॉग है, ठीक है, सिंगल ट्री का ट्रंक है, उसको क्या किया है, बीच से स्कूप करके निकाल दिया है. यू कैन सी हियर it is a single tree trunk. So उसका जो सेंटर पोर्शन है ना, सेंटर पोर्शन को स्कूप करके हटा दिया गया है. That's why it is a dug out canoes. ठीक है, तो इस तरह का वेसल, इस तरह का बोट का जो स्पीड है थोड़ा सा जस्ट बढ़ता है, बट बेसिकली इट इज ए ट्रेडिशनल वन. जब तक हम इसमें मैकेनाइजेशन नहीं लाएंगे तब तक जो है हमारा स्पीड जो है वो स्लो ही रहेगा.
जब हम मोटराइजेशन लाते हैं, मैकेनाइजेशन लाते हैं, तो डेफिनेटली जो है हम वी आर यूजिंग द इंजन पावर, तो इंजन पावर यूज करेंगे तो स्पीड उसका बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज डगआउट कैनो। कैटामैरन के बाद में डगआउट कैनोस का डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये जो हमारा जो भी है कैटामैरन है या क्राफ्ट है, जनरली दैट इज सेफ फॉर इनलैंड वाटर। लेकिन उसमें क्या होते थे, थोड़ा सा जब हमारा वेदर जो है मीन्स रफ हो जाते हैं कंडीशन, तो वो हमारा पलटने का हमारा डर रहता है, बोट हो सकता है पलट जाए। तो उसके चीज को रोकने के लिए थोड़ा सा कैनो को मोड स्टेबल किया गया। कैसे किया गया? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये भी कैनो जैसा ही है, ठीक है, डगआउट जैसा ही है, बट उसके साइड में, एक साइड में यू कैन सी दैट वन फ्लोटिंग डिवाइस इज अटैच, फ्लोटिंग डिवाइस। सो क्या होंगे, जब हमारा ये कैप्साइज होने लगेगा बोट, दैट मींस पलटने लगेगा, तो बिकॉज हियर वी आर हैविंग ए फ्लोटिंग अटैचमेंट, सो बोट क्या होगा, वो हमारा पलटेगा नहीं। तो ये हमारा डेवलपमेंट हुआ, एंड इस तरह के बोट को हम लोग बोलते हैं रामपानी। ठीक है, देन अनदर डेवलपमेंट था एडिंग ऑफ डेक। यू कैन सी डेक जो होता है हमारा, ये तो पूरा ओपन है, अभी ओपन डेक इसको बोल सकते हैं, बीच में मीन्स लॉक दिया गया है बैठने के लिए, बट इस डेक को हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली कवर कर सकते हैं, कोई बीच में स्पेस नहीं रहेगा। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेक आल्सो। सो अगर डेक रहेगा तो इसमें क्या है, वी कैन मीन्स जो हमारे क्रू मेंबर होगा, यू नो क्रू मेंबर, हेलो, नो सर। क्रू यस मेंबर हो, सर। हाँ कोई नो बोल रहा है, कोई नहीं यस बोल रहा है, हाँ बताओ, जो यस बोल रहा है वो सर बताओ। सीप वगैरह जो होता है उसमें जो स्टाफ होते हैं उसके, या तो चलाने वाला जो उसमें मतलब जो उसे हैंडल करते हैं। हाँ, जो मीन्स मतलब कैप्टन को छोड़ करके जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, जो हमारे बोट्स पे जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रू मेंबर। जो हमारा फिशिंग गियर ऑपरेट करेगा, या फिर हमारा जो मशीनरी पार्ट्स है उसको ऑपरेट करेगा, सो उसको हम लोग बोलते हैं क्रू मेंबर। ठीक है, सो कैटामैरन, देन डगआउट कैनोस, देन रामपानी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये सब जो बोट्स है, बोट्स में क्या होता है, वी हैव टू मूव करने के लिए ओर का यूज करते हैं। ओर, अगर हमको वेसल को या बोट को प्रोपेल करना है तो वी हैव टू यूज ओर। तो उसकी वजह से क्या होते थे, वो हमारा स्लो होता था। तो दूसरा डेवलपमेंट, नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, यूज ऑफ सेल। सेल है, सेल हमने देखा होगा, डू यू नो सेल? सेल SAIL, सेल। Yes, sir. हाँ, व्हाट इज दैट? So boat Sir, that it's like runs on ship. wind. इट्स लाइक शिप, नो? Sir, it runs on wind, sir, wind power. नहीं, वो तो उसका फंक्शन हो गया, हम पूछ रहे हैं सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है, ये जो हमारा डेक पार्ट है, सपोज दिस इज द डेक पार्ट, ओके, डेक पार्ट पे क्या करते हैं, वी आर राइजिंग ए पोल, ठीक है, और उस पोल पे वी कैन इरेक्ट और वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सेल। जनरली इट इज मेड अप ऑफ ए क्लोथ।
अर्लियर डेज में जो हम सेल बनाते थे, सेल जो हमारा होता था दैट इज मेड अप ऑफ ए लीव्स। उस समय में हमारा सिंथेटिक फाइबर का डेवलपमेंट नहीं था, तो जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर को ही यूज करते थे लोग। तो नेचुरल फाइबर में क्या है, लीफ फाइबर इज देयर, और लीफ प्लांट है, अगर बड़ा सा लीफ है जो प्लांट का, तो वो लीफ को यूज करते थे, लीफ को क्या करते थे, पोल पे टांग देते थे। तो उसमें क्या होता था, या फिर स्किन हो गया, एनिमल का स्किन हो गया, उस स्किन को क्या करते थे, पोल पे चादर के जैसा टांग देते थे। तो होता क्या था, वो जो समुद्र में जब जाते थे फिशरमैन, तो एक्शन, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ विंड, विंड जो क्या करेगा, वो सेल को पुश करेगा, है ना। तो जब वो विंड सेल को पुश करेगा, तो ये सेल हमारा अटैच है बोट से, तो बोट क्या होगा, विंड के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। लेकिन उस बोट का डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए जो सेल है, सेल के पोल को हम वी हैव टू रोटेट, और सेल को हमें रोटेट करना है। तो सेल को रोटेट करेंगे तो अगेन जो है डायरेक्शन ऑफ विंड जब हमारा सेल को हिट करेगा तो क्या होगा, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. वेट वेट, पेन इज नॉट हियर, पेन इज नॉट, अच्छा पेन क्या हुआ, व्हाट इज दिस फॉर्मेट, no pen. So basically it is a pole. On the pole we are hanging a sail. In earlier day we were using the natural fiber. So पहले जो लीफ, बड़े बड़े प्लांट के लीफ हैं, उस लीफ को क्या करते थे, उसको हम सेल का जो पोल है उस पे टांग देते थे, या स्किन है, एनिमल का स्किन है, उसको हम क्या करते थे, सेल पे लटका देते थे। तो जब हमारा विंड टच करेगा सेल को, तो उसका विंड का जो फोर्स है उसको पुश करेगा, तो पुश करेगा तो हमारा बोट भी मूव होगा उसी डायरेक्शन में। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल। ये कैसे कॉन्सेप्ट आया, ओल्डन डेज में पीपुल्स क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, जो बड़े चील हैं, सॉरी मींस जो बर्ड्स हैं जो स्काई में मींस बहुत ऊंचाई पे मींस ट्रेवल करते हैं और वो मींस उड़ते हैं, तो उसका जो देखता था, अरे वो तो पंख जो है उसका, बर्ड्स का जो मींस विंग है, वो तो ज्यादा नहीं वो मूव कर रहा है, जस्ट वो फैला के रखा हुआ है और विंड का डायरेक्शन के विंड के डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है और बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। तो उसी को कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेल अपने बोट में डाला, एंड देन वो शेल है विद द एक्शन ऑफ विंड, वो क्या है, हमारा बोट्स मूव होता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल। मैं बताता हूँ सेल का कैसे पिक्चर हुआ, मैं बताऊंगा। Then you can see this consists of a wide surface of leaves that are tied to a pole and placed vertically the canoe or raft. ठीक है, देन लेटर जो है स्किन, एनिमल स्किन का जो है यूज किया एज ए सेल फॉर द प्रोपल्सन ऑफ बोट, फॉर द प्रोपल्सन ऑफ शिप। बट इसमें क्या है ना, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन। अगर हमारा विंड है, विंड का हमारा मीन्स चल रहा है, हवा चल रही है इन्वायरमेंट में, तो हमारा बोट मूव करेगा। अगर जैसे ही विंड हमारा स्टॉप हो गया और स्पीड ऑफ द विंड जो है बहुत स्लो हो गया, तो हमारा वेसल जो है मूवमेंट नहीं होगा।
दैट्स व्हाई द नेक्स्ट स्टेप जो है डेवलपमेंट है वो है हमारा मैकेनिकल पावर और मैकेनिकल और प्रोपल्सन. तो देन देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ इंजन का डेवलपमेंट हुआ एंड देन इंजन्स आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ वेसल और मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द गियर, यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द फिशिंग वेसल. सेल के बाद में देन देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ इंजन, और इंजन के पावर को यूज करते हैं हम फिशिंग गियर एसेसरीज को या फिशिंग गियर ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए और वेसल के प्रोपल्सन के लिए वी आर यूजिंग द इंजन पावर. ठीक है. सो दिस फिशिंग बोट्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द दिस डिफरेंट factor, topographical factor, local region, environmental condition, available resource facility for construction. Then there is a three kinds of power: manual power, wind power and mechanical power. Manual power हो गया हमारा कौन सा, जो हम कैटामैरान है या हमारा रामपानी है या डगआउट कैनो है, उसके ऊपर में हम क्या करते हैं, ओर को यूज करते हैं फॉर प्रोपल्सन, फॉर द मूवमेंट ऑफ फिशिंग वेसल. ठीक है. विंड का पावर जो हो गया फॉर मूवमेंट ऑफ फिशिंग वेसल वी आर यूजिंग सेल. मैकेनिकल पावर में वी आर यूजिंग द इंजन. ठीक है. सो दीज आर द डेवलपमेंट. Then limitation of indigenous craft. Indigenous craft means traditional craft का limitation. Limitation क्या है? Cannot possible for go to deep water. Deep water में we can't go into the deep water. क्योंकि जो मैनुअल पावर हमारा है कितना हम यूज करेंगे. समुद्र तो हमारा बहुत मतलब कितना नॉटिकल माइल्स अंदर है पानी. एक बार समुद्र में चले गए तो पानी ही पानी नजर आता है. सो कितना आदमी उसको अपना मैनुअल पावर लगाएगा, वो थक जाएगा और को ऑपरेट करते करते थक जाएगा. So that's why it is not possible to go for deep water. Then it is not possible to catch large quantity of fish. Why? Because the size of the boat or size of the vessel is very small. So we can't catch large quantity of fish. We can't operate a large fishing gear. For operating a large fishing gear, we require a power, mechanical power we require. But our boat's size is very small. So that's why we can't catch large quantity of fish. Then cannot meet the demand of fish because there is a smaller size vessel. It increases the cost of fish, definitely, because we are catching very less. Then propulsion by wind or oar. अगर हम सेल का यूज कर रहे हैं या ओर का यूज कर रहे हैं, so speed of the vessel will be, speed of the boat will be less. Because the size of the boat is very small, that's why there is a limit carrying capacity. Then requires good weather condition because it depends upon the weather. So if the weather condition is good, then we can catch the fish. If the weather condition is not good, then we can't catch fish. Then no proper preservation facility because there is a small deck or open deck where we can't carry sufficient quantity of ice for preservation because smaller size vessel. So that's why no proper preservation facility. Then no facility for crews for cooking and sleeping. जो क्रू मेंबर है उसके लिए भी जगह नहीं है क्योंकि हमारा बोट का साइज है वो हमारा बहुत छोटा है. So these are the some limitation of indigenous craft. Then advantages क्या है? Advantages just उसी का opposite. इनके if we are using a mechanized craft. So mechanized craft में क्या है? Mechanical propulsion होगा तो definitely speed क्या होगा हमारा? Faster होगा. So higher speed, shorter time to reach the fishing ground because we are using a mechanical propulsion. Then fish hold with preservation facility. We can use sufficient, we can carry sufficient quantity of ice
अगर आइस नहीं, बड़ा बड़ा जो अगर वेसल है तो फ्रीजर भी रहता है वहां पे, तो वो उसमें भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं. There will be safety and good working environment because larger size fishing vessel is that, then possibility of bulk catch. We can catch large quantity of fish by using large fishing gear, and that catch we can preserve also. So this is the advantage of mechanized craft. Then what are the factors which influencing in fishing craft development? So this is topographical factor, geographical and physical factor, environmental condition, distance and fishery, available resource facility for construction, then harbor development. What is harbor? Harbor. बंदरगाह sir. So where ships and boats are docked. Anchored. ठीक है. जनरली देखो, अगर हम रोड का हम यूज करते हैं, बस पकड़ते हैं, तो क्या होता है हमारा बस स्टॉप. बस स्टॉप पे सारे पैसेंजर आएंगे, बस में सवार होंगे और जिसको जहां जाना होगा वो वहां जाएगा. अगर हमें ट्रेन से जब बोर्ड होना है तो वी हैव टू गो टू द स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3. सो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में स्टेशन इज देयर, प्लेटफॉर्म इज देयर. लाइक दैट एयर ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट इज देयर. तो अगर हम वाटर के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं और इफ वी आर गोइंग थ्रू वाटर समवेयर फ्रॉम वन शोर टू अनदर शोर, देन वी हैव टू रीच टू हार्बर. हार्बर में जाके टिकट लेंगे, टिकट लेके हम बोर्ड होंगे एंड बोर्ड होकर के हम जा सकते हैं जहां जाना है. So that is the harbor where all the boats will come and stay. All the fishing vessel or ship or vessel will come and stay. So that is the harbor. अच्छा, हम अभी थोड़ा सेल दिखाना है मुझे. वेट. स्क्रीन दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. गो टू इमेज. सॉरी यार, ये तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ गया बोट से. This picture you can see, this one. Yes, Hello. sir. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, This sir. picture, this is a boat. Yes, sir. Center there is a pole. ठीक है. और ये जो क्लोथ देख रहे हैं, कपड़ा, ठीक है ना. सो दिस इज द सेल. इसमें क्या है, विंड का डायरेक्शन जिधर रहेगा उस डायरेक्शन में हमको उसको रोटेट करके दे देना, रख देना है. तो विंड का फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली बोट भी मूव होगा. इससे थोड़ा और बड़ा दिखाता हूं, एक मिनट. यू कैन सी, थोड़ा नेट स्लो है.
You can see this structure, this is the cell. ठीक है? This structure is cell. और एक और है और you go to, अगर कहीं ये हो तो डायरेक्टली यू कैन विजिट टू द ओर. ये है ना, देख रहे हो, दिस इज ओर. ये बोट है, बोट पे बैठ गए हैं एंड प्रोपल्शन, मैनुअल प्रोपल्शन यूज कर रहे हैं. तो इसको चलाएंगे तो वाटर को क्या करेगा, पुश करेगा, तो बोट क्या होगा, आगे भागेगा. सो दिस इज ओर. यू कैन से ओर. ये सब है, स्ट्रक्चर है ओर. ठीक है? और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई. सर वो केरल का फेस्टिवल ओणम है क्या? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हाँ, ओणम में ही होते हैं. बोट फेस्टिवल डालो ना, देखो ना आ जाएगा इधर. शी. देख लो भाई, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अब वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. जितने बैठे हुए हैं दोनों, उनका दोनों हैंड में ओर है. अब ओर को क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, बोट हमारा आगे भागेगा. इसमें जो जिसका बोट जितना मतलब आगे रहेगा वो इस गेम को मतलब विन करता है. ठीक है? और कुछ कंफ्यूजन है? अदरवाइज सर सेशन क्लोज करें. हाँ बोलो. सर क्लास का नोटिफिकेशन सर मॉर्निंग में सर आता तो सही रहता सर, छूट जाता है सर क्लास कभी कभी. मॉर्निंग में दे दूं? यस सर, थोड़ा अर्ली सर. Yes, हाफ एन sir. आवर. नहीं, ये तो जब हमारे पास टाइम टेबल है, टाइम टेबल में तो एक महीना पहले ही मीन्स टाइम टेबल मिल चुका है, आज के दिन में किसका क्लास है किसका नहीं है. सर तो होता नहीं है ना हमेशा रूटीन के हिसाब से. क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्लास नहीं हुआ. बहुत ही कम होता है रूटीन के हिसाब से, 1-2 दिन होता है. ऐसा क्यों यार? ठीक है, हम दे दिया करेंगे, नो इश्यू. थैंक यू सर. बट जनरली हमारे क्लास जो होंगे, जो हमारा दिन है, ठीक है ना, पिछले Yes, sir. क्लास में मैडम ने हमें रिक्वेस्ट किया था तो हमने उनको अपना टाइमिंग दे दिया था, लेकिन वो टाइम हमारा था, बट मैडम ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने अपना समय दे दिया था, बट आफ्टर लंच फिर हमने लिया था. तो जिस दिन हमारा है उस दिन तो मैं तो लूंगा ही, अगर नहीं लेने से मैं इन्फॉर्म कर लूंगा, अगर कुछ वर्क हो जाएंगे तो नहीं लूंगा. ठीक है? यस सर. तो क्लोज किया जाए सेशन. यस सर. ओके. थैंक यू सर.